है उसकी लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो अपने दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो सबसे पहले अपने हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर रहे हैं. दैट इज समथिंग बिग. और दूसरा ये है कि सीनियर लेवल पे डिस्कशन शुरू होंगी ऑन ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज, collaboration, this, that, digital infrastructure, artificial intelligence, food security और mineral supply. and जो इंडिया है वो कोऑपरेट करेगा with the Canadian government on the situation जो कि निजर के कत्ल के बाद पेश हुई थी. ये जरा इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को सुने, then विक्रम मिश्री साहब को, and then we'll talk more on this. Prime Minister Shri Narendra Modi and Prime Minister Mark Carney of Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact, and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed potential collaboration. आगे बहुत सारी बात है और बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे कि वेयर डज इंडिया कनाडा स्टैंड. देखिए, इंडिया ने बार बार ये साबित किया है कि वो एक रेलिवेंट पार्टी है व्हेन इट कम्स टू hosting global events, when it comes to being a important player in terms of demography, economy, in terms of giving a message to the rest of the world कि हमारे पास जो है वो sufficient resources हैं to engage the world. और ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को भी सुने so that you come to know कि ये क्या बात कर रहे हैं. इनसे मेरा ख्याल है गौरव सावंत वहाँ पहुंचे हुए हैं इंडिया टुडे के, वो सवाल कर रहे हैं. That you and the Prime Minister of India discussed to take this relationship forward, that it reaches its true potential, sir? Well, I think the several things, if I may say. I would say the meeting, the fact of the meeting. Let me say a few things. First, just in terms of Prime Minister Modi's attendance at the G7. Prime Minister Modi has attended every G7 since 2018. That is a reflection of the size of the Indian economy, the dynamism of the Indian economy, Indian technology, the leadership position India plays in a host of venues from G20 and beyond. So as chair of the G7, hosting the Prime Minister in that context is entirely natural, entirely consistent. I fully expect the Prime Minister of India will be in attendance at the G7 next year, for example, in France. सिंपल सी बात वो कर रहे हैं कि इंडिया के पास इकोनॉमी है और डेमोग्राफी है, और आपने माजी में क्योंकि ये किए हुए थे तो ये तो हमने आपको इनवाया. अदर दैन दैट वो समझते हैं कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो पोल अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन दैट इज वेयर इंडिया को वो समझते हैं कि हमें जिसे वो कहते हैं ना, इस चीज को इधर अंडरस्टैंड करें. वो क्या आपको पता है कि G7, अब देखिए ये है G7 की पोजीशन. देयर इज नो जॉइंट कम्युनिके बट कंप्लीट हो गया सारा. उसकी वजह ट्रंप और बातें करता है, दूसरी लीडरशिप और बातें करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और दूसरा ये है कि ये जो कनाडा इंडिया के ताल्लुकात स्टेबलाइज हुए हैं, लार्जली आई एम फॉर द स्टेबलाइजेशन विद एनी होना चाहिए. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो ताल्लुकात कनाडा के से ख़राब होंगे तो देखिए खित्ते का नुकसान होता है.
वी नीड टू थिंक। हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे, पाकिस्तान को वो भी छोड़ दे। मैं नहीं कहूँगा ये, मैं कहूँगा अच्छी बात है यार, कनाडा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के कारोबार अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दुनिया में वो जाएंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि आपने जो है वो ताल्लुकात खराब होने से ऐसे थोड़ा। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ है, सो वन मस्ट अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ। अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ पे आप नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेंथ आप वो, सो मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने इस चीज़ को थोड़ा स्टडी किया है और मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ जो है ना इंडिया की, ठीक है, वो अपनी जगह पे है और स्ट्रेंथ पे फोकस वो उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और सो दैट इज़ वन थिंग। सो पाकिस्तान को इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो हैं वो सही होते हैं, ख़राब होते हैं। एक बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निजर के कत्ल के अंदर इंडिया किस हद तक कोऑपरेट करेगा, किस हद तक कोऑपरेट करेगा, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा वहाँ पर, इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और अगर इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि इंडिया जय हिंद दोस्तों। युद्ध की मजेदार ट्रम्प ने G7 की बैठक के बीच ही लौट आई, क्योंकि बैठक में सारे मुद्दे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अमेरिका केंद्रित में थे और भारत सहित तमाम देशों के नेता ट्रम्प से सीधे बात करना चाहते थे। लिहाजा अब बैठक का नतीजा अहम नहीं होगा। बैठक में भारत के मेहमान के तौर पर G7 में अनौपचारिक संगठन है जिसका कोई चार्टर या ट्रेड नहीं किया गया। फिर भी 40 साल पहले तक ही दुनिया की कुल जीडीपी का 62% इसी सदस्य देशों में थे, लेकिन आज इस 7 देशों में यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान का वैश्विक जीडीपी से योगदान मात्र 42% रह गया। सपोर्ट करेगा इस सेंस में कि हाँ जी, हम निजर के जो कत्ल हुआ है इसमें आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो दैट इज़ फाइन। अगर नहीं तो जारी बात है उनकी फिर अपनी एक पोजीशन होगी। लेकिन आई थिंक इन माय असेसमेंट इंडिया और कनाडा ने दोनों ने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है। कनाडा को चाहिए मार्केट, सीधी सी बात है भैया, कनाडा को चाहिए मार्केट और इंडिया को चाहिए एक्सेस। दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, सारे लोगों का दिल होगा कि हाँ जी हमें ये मार्केट जो है वो मिले, हम इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन इन द वेस्ट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर कोई यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश कर रहा होगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हर कीमत पे इंडिया के साथ काम करना है। ये इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें आप लोग, जो हमारे दोस्त अक्सर जज्बाती हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि इंडिया की रेलेवेंस है और इंडिया ने रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क। देखिए इंडिया दुनिया को क्या बेच सकता है और इंडिया दुनिया से क्या खरीद सकता है, ऑन दिस बेसिस इंडिया को देखा जा रहा है। इंडिया की जो